मैं विंडोज़ डिवाइसेस बहुत सालों से यूज़ कर रहा हूँ। सबसे पहले मैंने एक वाइट कलर का पूरा HCL का सेटअप लिया था सालों पहले, मतलब आई गेस आई वॉज इन 9th or 8th standard. Then I got myself another black version of HCL, a new updated one. And right now I have this MSI Katana, which is having i7, 16GB RAM, the regular stuff. Like, it's not very highly powerful, but it's decently powerful. So now we got MacBook Air 14-inch M4 chip. अभी इसको अनबॉक्स करते हैं, फटाफट स्पेसिफिकेशन बताते हैं और इसमें क्या क्या कंटेंट आते हैं और कितना तगड़ा ये डिवाइस है उसके बारे में बात करेंगे. Hey, what's up guys, my name is Manthan. You are watching another video of my YouTube channel. Let's get back on the unboxing. Open it this way. So this is the box of an official MacBook Air 13-inch with M4 chip. So there is impression of a MacBook Air. यहाँ पे MacBook Air लिखा हुआ है, Apple logo, MacBook Air, Apple logo, and पीछे few things have been mentioned like M4 chip, 16GB memory, 512GB storage. The same unboxing experience just like Apple devices. Packaging वगैरह अच्छा आता है compared to Windows laptops. Moment of truth. There you go. And this one is in silver color. I'm not sure what is the official name of it, but silver color में आता है ये. And let's keep that thing aside. Let's see what else. This one is the Type-C to magnetic adapter, and this one is the power brick. Very small. इंडिया में बहुत बड़ा मिलता है, but still let's see. The MacBook Air instruction manual and sort of things. No more Apple stickers. Apple, what are you doing? Yeah, this one is a 35-watt power brick, which is kind of nice because in India ये वाला power brick बहुत बड़ा आता है, or somewhere around that. So compared to this one is very minimalistic. It's nice. And braided cable, Type-C to this magnetic adapter. iPad में भी ऐसी आती है. Let's just open this way, and there is a shiny Apple logo. We are not getting glowing nowadays, glowing logo, so this is what it is. नीचे 4 rubber pads मिल जाते हैं. And if we talk about other ports, यहाँ पे राइट साइड पे, दिस वन इज़ द राइट हैंड साइड, तो यहाँ पे आपको 3.5mm हेडफोन जैक मिल जाता है, विच इज़ रियली नाइस. यहाँ पे लिफ्टिंग स्पेस मिल जाती है जहाँ से यू कैन लिफ्ट द डिस्प्ले. और यहाँ पे आपको मिल जाता है ये मैग्नेटिक कनेक्टर प्लस 2 Type-C पोर्ट फॉर डेटा ट्रांसफ़र एंड सॉर्ट ऑफ थिंग्स. Now let's open this thing. Let's see what is inside. Okay. तो ये automatic startup हो गया. Let's just remove this one. Yeah, hello appeared. The newer generation of a MacBook Air comes with Apple M4 chip, which is highly powerful इन लैपटॉप एंड टैबलेट रेंज, क्योंकि जो iPad Pro वगैरह आते हैं उसमें ये चिप आता है, ऑप्शनल आता है. इट कम्स विथ 10 कोर CPU जो M4 में आता है. ऑन थ्रू आउट द होल चिपसेट लाइनअप M4 में 10 कोर CPU आता है. बट व्हेन इट कम्स टू GPU, इसमें 8 कोर वाला GPU मिल जाता है. अगर आप प्रो मॉडल लेते हैं तो प्रो मॉडल में भी M4 चिप ही आती है, बट उसमें 2 कोर ज़्यादा आता है. तो उसमें 10 कोर CPU जो इसमें भी आता है, बट उसमें 10 कोर GPU आता है जो इसमें 8 कोर GPU आता है. तो आई एम नॉट श्योर लाइक एप्पल हर एक बार ऐसा क्यों करता है. जैसे हमने iPhone 16e रिव्यू किया, उसमें भी A18 Pro चिपसेट ही है, बायोनिक नहीं, वो तो पुराना हो गया. A18 Pro चिपसेट ही है, बट उसमें GPU में कोर काट दिए हैं कंपेयर टू रेगुलर iPhone 16 सीरीज. सेम गोज विथ दिस वन. Like it has 8 core GPUs,
जहाँ की प्रो मॉडल्स में 10 को GPU आता है. सो दैट इज़ द ओनली डिफरेंस. एंड अगर आप इफ़ यू आर नॉट इनटू ग्राफिक काइंड ऑफ थिंग्स, तो ये मैकबुक प्रो जितना ही सफिशिएंट एंड पावरफुल होगा. स्टैंडर्ड बेस वर्जन 16 GB रैम के साथ आता है. तो दिस वन इज़ 16 GB रैम विच इज़ मोर देन इनफ फॉर मी नाउ. तो 16 GB रैम प्लस 256 GB इज़ अ बेस लाइनअप. अगर आपको कोई भी मैकबुक एयर चाहिए तो 256 GB तो आएगा ही आएगा, प्लस 16 GB रैम. सो आई गॉट माई सेल्फ 512 GB रैम वर्जन विच इज़ gonna be a future secure for me. When it comes to a battery backup, this is why I wanted to upgrade from my Katana MSI. अभी मेरे को 2 साल के बाद ये बैटरी बैकअप देता है हाफ एन आवर का. इफ़ द बैटरी इज़ राइट नाउ 99%, उसके बाद हाफ एन आवर के बाद ये डेड हो जाता है. सो आई हैव टू प्लग दैट इन देन यूज़ इट. तो कोई काम का नहीं रह जाता है लैपटॉप फिर. बट परफॉर्मेंस उसकी काफ़ी अच्छी है, आई हैव टू एग्री दैट. इसमें 18 आवर का बैटरी बैकअप मिल जाता है. इफ़ यू कंपेयर विद द मैकबुक एयर लास्ट जनरेशन M3, उसमें 52.6 वॉट आवर की बैटरी लाइफ थी, इसमें 53.8 है. सो आई गेस 1.5 या 2% इंक्रीमेंट है, विच इज़ रियली गुड. तो ये तो बात हो गई सारे स्पेसिफिकेशन की. नाउ लेट्स अबाउट व्हाट न्यू इट कम्स विथ. तो इसमें आ जाता है नया वेबकैम जो कि काफ़ी अच्छा है. एंड वी गोना रिव्यू दिस डिवाइस फॉर श्योर, बट दैट्स व्हाट आई हैव हर्ड एंड दैट्स द वेबसाइट बिफोर बाइंग दिस थिंग्स. तो वेबकैम काफ़ी अच्छा है और आपके फेस को ट्रैक करके फोकस भी करता रहता है. सो विच इज़ अ नाइस वे टू इंटीग्रेट. और लैपटॉप में वेबकैम वही लोग यूज़ करेंगे जो स्काइप वगैरह यूज़ करेंगे, स्काइपी या फिर माइक्रोसॉफ्ट का टीम वगैरह यूज़ करेंगे फॉर प्रोफेशनल यूज़, राइट. तो उसके लिए काम आ जाएगा. अदर देन दैट, इफ़ यू वांट टू डू अ वीडियो कॉल, योर फोन इज़ इनफ विथ योर फ्रेंड्स, विथ योर फैमिली, विथ योर कलीग्स, राइट. अभी एक चीज़ मुझे खटक रही है जो कि नेगेटिव होगी या फिर जैसे मैंने सोचा वैसे प्लान होगी, आई एम नॉट रियली श्योर, विच इज़ अ फैन इंटीग्रेशन. तो कि मैकबुक एयर में कोई फ़ैन नहीं मिलता. तो CPU आता है, अंदर थोड़ी हीट एलिमिनेट करने की कूलिंग कॉइल वगैरह होगी, बट नो फैन, कोई एग्जॉस्ट वगैरह कुछ नहीं आता. सो आई एम नॉट श्योर लाइक हैवी टास्क को लॉन्गर पीरियड ऑफ टाइम में ये कैसे हैंडल करेगा, आई एम नॉट रियली श्योर. जैसे विंडोज़ में अगर इफ़ यू आर एडिटिंग समथिंग ना, देन इट विल स्टार्ट द फैन. तो बहुत इरिटेटिंग साउंड क्रिएट करता है, बट दैट्स फाइन क्योंकि वो कूल भी कर रहा होता है, तो परफॉर्मेंस थोड़ी बहुत बैलेंस आउट हो जाती है. बट इसमें कोई फ़ैन वगैरह कुछ मिलता नहीं है. तो आई एम नॉट श्योर कि लॉन्ग टाइम में या फिर लॉन्गर पीरियड ऑफ आवर्स में एडिटिंग वगैरह कैसे होगा. एक और चीज़ जो मुझे चाहिए थी वो थी टच बार, बट टच बार ओनली प्रो मॉडल्स में आता है. सो आई एम नॉट रियली कंप्लेनिंग दैट मच क्योंकि प्राइस मैकबुक एयर वर्सेस प्रो की बहुत डिफरेंट है. तो आई एम नॉट कंप्लेनिंग, बट स्टिल अगर मैकबुक में ये प्रो बार टच बार आ जाता तो इट वॉज रियली अमेजिंग क्योंकि आई हैव यूज दैट थिंग विच इज़ रियली गुड. एज वी नो, एप्पल हर एक बार जब भी नई रेंज या फिर नए डिवाइसेस लॉन्च करता है, नए कलर को लॉन्च करता है. तो अभी इस टाइम पे सिल्वर कलर है, देन स्टारलाइट जो कि गोल्ड सिल्वर है, देन दे हैव मिडनाइट ब्लू जो कि काफ़ी डार्क, थोड़ा सा ब्लूइश बट काफ़ी डार्क, ऑलमोस्ट लाइक डार्क ग्रे. और स्पेस ग्रे तो इन्होंने निकाल ही दिया है, उसके कंपेयर में स्काई ब्लू लॉन्च किया है. एंड दिस वन इज़ द सिल्वर वन क्योंकि what I have faced in my earlier past experience is that अगर आप कोई भी एप्पल डिवाइसेस या फिर एल्यूमिनियम बॉडी डिवाइस बाय करते हो विथ अ डिफरेंट कलर, अभी यहाँ पे कोई डैमेज हो जाता है, जैसे कोई स्क्रैच हो जाता है तो वो वहाँ से पेंट निकल जाता है. सो इफ़ यू गो विथ द सिल्वर कलर, क्योंकि ये एल्यूमिनियम का कलर है, सो देयर इज़ अ लाइट थिन कोट ऑन टॉप ऑफ इट ऑन द एल्यूमिनियम, बट ये थोड़ा सबमर्ज हो जाता है. तो कि अगर डेंट है या फिर स्क्रैच है तो काफ़ी इजीली दिखता नहीं है. दैट्स व्हाई आई ऑप्टेड फॉर सिल्वर कलर. रेस्ट ऑफ द कलर्स यू कैन चूज़ एंड इफ़ यू लाइक दोज. द मिडनाइट ब्लू इज़ गुड बट उसमें फिंगरप्रिंट वगैरह आ जाता है. देन स्टारलाइट गोल्ड, इफ़ यू लाइक गोल्ड यू कैन गो विथ दैट. If I compare with my Windows laptop,
This one weighs 1.2 kg, which is nothing. Windows laptop, this is a gaming laptop. Okay, so I'm not complaining that much, but I'm just showing you the comparison. क्योंकि गेमिंग लैपटॉप में ऑफ कोर्स बड़ा GPU आता है पूरा फैन इंटीग्रेटेड के साथ. एज यू कैन सी यहाँ पे कॉइल वगैरह आते हैं, तो यू कैन नॉट एक्चुअली प्रैक्टिकली कंपेयर दिस थिंग विद दिस, क्योंकि ये कोई प्रोफेशनल लैपटॉप नहीं है. इफ़ यू गो विद द प्रोफेशनल लैपटॉप लाइक सैमसंग और एसस मिक्स, देन यू कैन रियली कंपेयर विद this to that one, but I'm just comparing side by side. इसमें almost 3 kg के around weight होगा, 3 के around. It's a little more heavy, like almost double than what this thing weighs. And if you compare the thickness, this one is very thin, man. This one is very thin, and compared with this one, like you can directly see the comparison. So this one is a very handy, professional and performance oriented machine. That's all in this video, guys. This was an unboxing and a first impression of my MacBook Air M4 chip. अगर आपको इसके बारे में नए वीडियोस चाहिए तो मेक श्योर यू सब्सक्राइब टू माय यूट्यूब चैनल, सो दैट्स हाउ यू कैन स्टे ट्यून विद द चैनल. और नए वीडियोस के साथ आपको अपडेट भी मिल जाएगी. इसका रिव्यू जल्द आएगा, कंपैरिजन जल्द आएगा, व्हाट्स न्यू इन दिस वन, और क्या चीज़ मुझे अच्छी नहीं लगी, वो सारी चीज़ों के बारे में नेक्स्ट आने वाले वीडियो में बात करेंगे. सो दैट्स इट इन दिस वीडियो, गाइस. इफ़ यू लाइक दिस वीडियो, हिट द लाइक बटन एंड डू नॉट फॉरगेट टू सब्सक्राइब. This will help me a lot, and I will list down the buying link of this in description box below, so you can check it out from there. Thank you so much. Have a good day.